In this class, I am going to talk about the functions and the types of functions. In class 11th only, we did talk about the idea of functions as a special kind of a relation. So I will just quickly recap what we learned in class 11th and then we'll continue with the types of functions. So function is basically the association from a set A to set B in such a way such that to each element of A there exists some image in B. For each element in A there exists some image in B. And say if this is 1 2 3 and say this is ABC, for 1 we say A is the image, and inversely we can say for A 1 is the pre-image. The elements of set A are known as domain of the set A. The elements of a set B is always the codomain, and all the elements of B which have been used up, as in this case you observe D is still left out. So all the elements which are used up, they are referred to as the range of this relation. And in general, recall that range is a subset of codomain. So look at the following diagram. The idea will be very easily understandable. A के लिए प्री इमेज image is P, B के लिए image is Q, C and D they both have the image as R, which is possible. And recall मैंने आपको इस वे में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि अगर greater than की तरह कोई साइन आ जाए from A to B, so that is a relation. Oh sorry, that's a function. Relation तो of course है ही है, that's a function. बट अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाए, मींस एक एलिमेंट एसोसिएट हो दूसरे सेट के दो एलिमेंट्स के साथ, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन. फॉर द गिवन दिस डायग्राम, check out the domain, range and codomain. Generally in 12th, do not expect such type of questions कि someone is going to ask the domain and range. That was a part of grade 11th. 12th may will be mainly focusing on types of functions. But definitely if I'm talking about types of functions, I must be clear initially what exactly is a function. Check out this another example. This is your set A, 1, 2, 3, 4. This is your set B, 1, 4, 9, 16 and 25. Look at the association. So this is the way we define the function. यहाँ ये स्क्वायर ऑफ अ नंबर सारे लिए गए हैं. तो इस केस में डोमेन क्या होगा इस फंक्शन की? क्लियरली ऑलवेज सेट ए. कोडोमेन इज क्लियरली ऑलवेज सेट बी. फंक्शन के लिए ये हमेशा फिक्स होता है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है. रेंज सिर्फ वेरी कर जाती है. तो रेंज इस केस में 25 को छोड़ दो क्योंकि 1, 4, 9 एंड 16 यूज हुए हैं. बट स्टिल यस इट इज अ फंक्शन, क्योंकि हर एक एलिमेंट ऑफ ए जो है उसे यूनिक इमेज मिली है इन द सेट बी. Few more examples just to check whether it's a given relation is a function or not. Clearly this is one-to-one correspondence function. This is again a function. आपको बताया था greater than की तरह अगर दिख भी जाए, that is a function. Now why this is not a function? ये वाला क्योंकि C जो है इसके लिए कोई भी इमेज नहीं दी गई है इन दी सेट Y, इसीलिए इट इज नॉट अ फंक्शन. और या लास्ट वन, व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन? एलिमेंट तीनों को इमेज तो दे दी
बट ए के लिए मल्टीपल इमेज प्रोवाइड कर दिया है। और इन सिंपल वर्ड, अगर लेस देन की तरह नोटेशन दिख जाए इन आवर एरो डायग्राम, इट इज नॉट अ फंक्शन। देन देयर इज अ टेस्ट फॉर अ फंक्शन। पहली बात, फंक्शन है या नहीं है उसके लिए एक टेस्ट है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। और उस केस में देखो सिंपल रूल होता है, आई एम नॉट गोइंग टू द थ्योरेटिकल पार्ट, दैट यू कैन चेक आउट इन योर होमवर्क। जस्ट लुक एट द ग्राफ ऑफ सम फंक्शन। अगर आपके पास आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, कोई भी वर्टिकल लाइन मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल, and if that vertical line crosses the graph at more than one point, if any vertical line crosses the graph at more than one point, it is not a function. And look at this case. तो अगर ये वर्टिकल लाइन है, आप कोई भी वर्टिकल लाइन ये सोचो infinitely many lines can be there. So each line is cutting at exactly one point to the graph, hence it is a function. एक ही पॉइंट पे अगर exactly कट करेगा तो ये हो जाएगा फंक्शन। तो ये ग्राफिकल मेथड है इंश्योर करने का कि ये फंक्शन है या नहीं, अदर देन आवर एरो डायग्राम अप्रोच। देन क्विकली रिकॉल द टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो आपने कुछ लाइक आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, रैशनल, मॉडुलस फंक्शन, ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है एक बार लास्ट वन, द मॉडुलस फंक्शन, mod x। डेफिनेशन देख लीजिए, mod x is x whenever x is greater than or equal to 0, and it is minus x whenever x is less than 0. And here is the graph, which is your V-shaped graph. V-shaped graph हो जाता है यहाँ। And then we have the signum function in greatest integer and linear function. तो लीनियर तो आपका वही सिंपली स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कैसी भी स्ट्रेट लाइन जा सकती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आंसर इसका है वो हमेशा इंटीजर आएगा, मतलब रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंटीजर। एंड हियर इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। Quickly check out this as well, very important. So this is what you already have done in class 11th. Now coming to grade 12 syllabus, various types of functions. So types of functions may mainly we will be talking about four types of functions, like many one function, one function, onto function, and into function. Now, what are their meaning, their significance, their diagrams, their definition? Let us consider each of them one by one. As the name suggests, many one function, many to one, greater than का साइन, इसके लिए सेम इमेज आ रही है। तो दिस ग्रेटर देन का अगर साइन आ जाए एक तरह से, सो वो आपका हो गया मैनी वन फंक्शन। पहली बात ये नोट कर लीजिए, फंक्शन तो ये है ही क्लास 11 की डेफिनेशन से। अब उसमें भी स्पेशल वैरायटी में क्या बात कर दिया है, अगर दो एलिमेंट के लिए सेम इमेज आ रही है तो वो हो गया मैनी वन फंक्शन। प्लीज गो थ्रू दिस रिटर्न पार्ट। In case of any doubt, please, you can raise your hand, you can write in the chat, you can unmute yourself. But be very, very attentive and focused. Very important topic is being taken.
अनदर टाइप ऑफ फंक्शन जो हम बात करेंगे दैट इज आवर वन वन फंक्शन. One to one correspondence is there, and this is also known as the injunction or इंजक्टिव फंक्शन या मैप भी इसको कह दिया जाता है. तो फंक्शन के लिए एक सिनोनियम होता है मैपिंग. तो ये नाम भी याद कर लीजिए, इंजक्टिव फंक्शन विच इज वन वन फंक्शन. और वन वन के केस में लुक एट द डायग्राम, जैसे यहां देखो आपको बताया गया है. इसमें क्या हो रहा है, A1 के लिए B1 एक इमेज है, A2 के लिए ये रही इमेज, A3 की B1 यूनिक इमेज है और A4 की यूनिक इमेज है. राइट. तो इस केस में वन कैन इजीली नोट कि हर एक एलिमेंट जो है ए का इट इज हैविंग अ यूनिक इमेज. तो एक डायग्राम कुछ ऐसा आ रहा है, वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस बन के आ रही है. हेंस दिस इज वन वन फंक्शन. अब वन वन कौन सा नहीं है वो आप इस डायग्राम से एक बार सोच सकते हैं. लुक एट x1 एंड x3, both are having the same image as y2. Obviously this is, if not one one, it is the many one function. By definition last case जो हमने लिया था वो यही था कि अगर ग्रेटर देन की तरह आ जाए किसी फंक्शन में इस तरह से देखने में, so that would become our many to one function. Then there is a formula for number of one one functions which are possible from set A to set B. This is not a part of your CBSE syllabus, but competitive exams में this may be asked. तो मैं just एक idea आपको formula का दे रहा हूँ. In homework you can try it out. कि number of functions कुछ इस तरह से quickly ये दिखा देता हूँ. If this is a set A, this is a set B, और assume कर रहे हैं कि इसके अंदर m elements हैं, means cardinality of first set is m, cardinality of next set is n. तो इस केस में नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस जो हैं वो हो जाएंगे npm whenever n is greater than or equal to m, and it is simply 0 whenever n is less than m. npr ये परमुटेशन की बात हो रही है, और npr का फॉर्मूला इनकेस अगर भूल गए हैं याद दिलवा देता हूं, n factorial upon n minus r factorial. So using the concept of permutation, we actually count the number of one functions. So last statement is obvious. If the function is not one, then it is a many one function. Moving further, method to check one of a function or the injectivity के मेरा function one है या नहीं है. तो उस केस में आपके पास देखिए मेथड goes like this. There are two ways. One is the algebraic approach, another one is a graphical. But graphical approach हर बार possible नहीं होगी अप्लाई करना. Reason, we cannot graph every function without using say at least some software program. And in our CBSE curriculum, usage of any graphic calculator or software is prohibited. तो इसीलिए हम mainly focus करेंगे algebraic method के ऊपर. I will explain with certain examples, but for a timing सिर्फ इतना देख लीजिए. Say x and y दो elements हैं आपके in the domain. डोमेन के दो एलिमेंट ले लिए और फिर आपने एज्यूम कर लिया कि f of x is equal to f of y. अगर इससे फाइनली सिर्फ इतना सा कंक्लूजन आ जाए कि x is equal to y, इवन अगर x is equal to प्लस माइनस y आता है, दिस इज ऑल्सो नॉट मेकिंग इट वन वन, उससे ये मैनी वन हो जाएगा.
तो f of x equal to f of y if imply simply x is equal to y, then it is 1 function. और ग्राफिकली आपके पास देखो क्या हो जाता है, सिंपल मैं लेता हूं चीज ये, इफ अ फंक्शन इज ईदर अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट विल बी योर 1 फंक्शन. और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो जाता है, या डिक्रीजिंग का, डेरिवेटिव पॉजिटिव आए फंक्शन का या डेरिवेटिव नेगेटिव आए. इस केस में फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इस केस में होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. दिस अप्रोच ऑफ डेरिवेटिव्स इन फंक्शंस इज यूज्ड फॉर द आईआईटी लेवल. ये सीबीएसई करिकुलम में नहीं है, इसीलिए आई विल अवॉइड दिस पर्टिकुलर अप्रोच. Otherwise, in many of the questions, this derivative will make the question much easier. Still, let us avoid it. याद आ गया डेफिनेशन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ कैसा होता था, समथिंग लाइक दिस. ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है, और अगर मान लो फंक्शन आपका कुछ ये है लाइक दिस, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. तो ग्राफ से देखते ही पता चल जाता है कि ये आपका 1 फंक्शन है. फर्दर अब हम बात करेंगे अबाउट ऑनटू फंक्शन, ऑनटू एंड इनटू. तो ऑनटू में क्या होता है, जिसका दूसरा नाम है सरजक्शन, और इसे हम कहते हैं ऑल्सो सरजक्टिव फंक्शन. सरजक्टिव फंक्शन और ऑनटू फंक्शन. In case if you have range is equal to codomain, if the range of a function is equal to codomain, then my function is surjective function. What does that mean? That range और कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए. याद रखिए सेट B जो है वो तो हमेशा कोडोमेन है. सेट Y यहां का केस देखूं तो ये तो आपका हमेशा कोडोमेन है, और बाय डेफिनेशन ये रेंज के इक्वल हो जाए. रेंज का मतलब क्या हो गया, विच ऑल एलिमेंट्स हैव बीन यूज्ड. तो विच ऑल एलिमेंट्स हैव बीन यूज्ड, तो ये दोनों एग्जांपल जो यहां दिए हुए हैं बाय डेफिनेशन बोथ आर ऑन टू, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो हैं सेट बी के यूज हुए हैं. In this case, all the elements of set B are used. And if I mix now both the definition of 1 वाला भी, तो फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा, इस फंक्शन f का प्रॉपर नेम क्या होगा, this would be your 1 and onto function. बट इसका नाम क्या होगा, फंक्शन g को अगर मैं देखूं ध्यान से, ग्रेटर देन का साइन आ गया ना, एरो ग्रेटर देन होने का मतलब it is actually many one and all elements are used, so it is onto function. Then there is again a formula for the number of 1 functions, set A and set B, A, B. तो आपके पास आप चेक करिए, यहां अगर ये फंक्शन f जा रहा है और सेट A की कार्डिनैलिटी, मतलब इसमें m एलिमेंट है और इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो एक तो आपके पास फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, that will be simply, not simply because this is a complicated formula actually to apply, I am not going to consider the formula, but एक आइडिया ये क्लियर हो जाता है, अगर ये कंडीशन है आपके पास
or in case n is greater than m, then the number of onto functions is 0. ये एटलीस्ट आप सभी को कॉमन सेंस से समझ आना चाहिए। इसमें तो एक ही चीज बताई थी फॉर्मूला में, बट दिस पार्ट ये मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट विल हैपन इफ n is greater than m. So clearly in that case the number of onto functions will be 0. Again, for IIT or a competitive examination point of view, this formula you may avoid this formula, but arrow diagram से meaning of the onto function should be clear. Any doubt till this step? I am taking a break for 1 minute. बताइए, सोचिए एक बार ध्यान से। So 4 types of functions I have discussed. 1 1, अगर 1 1 नहीं है तो many 1. The other variety, the onto function, also known as surjective functions. And अगर onto नहीं है तो into function कहेंगे। In fact, that is now pretty obvious. जब मैंने बात कर दिया है about into function, तो आप चेक करिए पहला वाला फंक्शन, एलिमेंट इज वैकेंट। B2 के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यहां देखो पीछे कोई भी एरो डायग्राम नहीं उठ रहा है, तो अगर प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती तो इट इज इनटू फंक्शन। सेम वे इन दिस केस Y3 is vacant, no pre-image exists in this set X, hence it is into function. और अगर प्रॉपर नेमिंग की बात करूं तो इसका नाम क्या होगा फंक्शन f का? एरो डायग्राम से क्लियर हो रहा है, दिस इज मेनी वन एंड इनटू फंक्शन, दोनों डेफिनेशन को मिक्स कर दिया। और g क्या है? फंक्शन g 1 to 1 तो कॉरस्पॉन्डेंस दिख ही रही है क्लियरली, तो दिस इज 1 1 एंड इनटू फंक्शन। देयर कम्स द मेथड टू फाइंड कि अब आपका फंक्शन इनटू है या ऑन टू है। मेनली तो फोकस हम ऑन टू पे ही करेंगे, तो उस केस में आई विल एक्सप्लेन द मेथड यूजिंग सम एग्जांपल, बट बेसिक आइडिया क्या होता है? जनरल अप्रोच इज यू टेक y इज इक्वल टू एफ एक्स, वट एवर फंक्शन की डेफिनेशन इज गिवन, आप उसे y के इक्वल ले लीजिए और सॉल्व दैट और एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। यहां y था इन टर्म्स ऑफ x, आप x को निकाल दो इन टर्म्स ऑफ y। और उस केस में फिर हम नोट करते हैं वन अनदर कंडीशन दैट आई विल एक्सप्लेन यूजिंग सम एग्जांपल। और उसका बेसिक मीनिंग जो इस सेकंड पार्ट में बता रहे हैं वो क्या है कि अगर आपका ये फंक्शन a टू b था, यहां अगर x है, यहां पर fx है जिसे हमने y कह दिया, तो any y if chosen here in b, it should have a pre-image. That is, if any y belongs to codomain have a pre-image in the set A. Set A का मतलब in the domain. That is, इस केस में क्या हो जाएगा?
लॉजिकली सोचना, मैंने रेंज को एक्चुअली इक्वल कर दिया है कोडोमेन के, क्योंकि y तो एनी एलिमेंट था और मैंने कहा कि सारे y के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाए इन दिस सेट A, और अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन उस केस में f हो जाएगा ऑनटू। आई वुड हाईली रिकमेंड, ये जो दो स्टेटमेंट लिखी हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझना तो है ही, साथ में लर्न दी स्टेटमेंट्स एज वेल विद देयर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, क्योंकि ऑन टू करने में हम कॉमनली ये स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। Function which is both on1 and onto is known as bijective function. A function which is both on1 as well as onto. यहां तो फिर रिपीटेड बता दिया है कि पहला मतलब वन वन होने का मतलब ये चीज सेटिस्फाई करना चाहिए, ऑन टू का मतलब दिस हैज टू बी ट्रू। तो इफ बोथ द कंडीशंस आर मैचिंग, दैट फंक्शन इज रेफर्ड टू एज बाइजेक्टिव फंक्शन। सो लुक एट द फॉलोइंग एरो डायग्राम एंड मेक इट श्योर द आइडिया इज क्लियर कि आपका यहां, अगर मैं चलो कॉरस्पॉन्डेंस ऐसे लिख देता हूं कि दिस इज एफ, तो फंक्शन एफ क्या है, A1 गया था विद B3, A2 विद B4, A3 with B1 and A4 with B2. So one can easily note there is a one-to-one correspondence, hence 1, 1. Each element of set B is used up, means each element have a pre-image in the set A, hence it is onto. तो 1, 1 and onto होने का मतलब F मेरा क्या हो गया है, बाइजेक्टिव फंक्शन। और फर्दर हम बात करते हैं, एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल होने का मतलब इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट। Recall in chapter number 2, which already we have discussed about inverse trigonometric functions. तो हमने साइन के साथ साइन इनवर्स, देन कॉस इनवर्स फंक्शन, tan इनवर्स एज अ फंक्शन वी ऑलरेडी हैव स्टडीड। इवन से द एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, उसके लिए भी हम उसका इनवर्स फंक्शन पढ़ चुके हैं एज द लॉगरिथमिक फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, दे आर द इनवर्स टू ईच अदर। इनवर्टिबल होने के अंदर मैंने आपको बताया एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इस केस में एफ इनवर्स क्या बन जाएगा, एलिमेंट को रिवर्स करके लिखो लाइक दिस, लाइक दिस। और फोर्थ का ये एक्स वाई की जगह वाई एक्स कर दो लाइक दिस। दैट इज if AB is any point on the graph of the function, B comma A lies on the graph of the inverse of a function. In fact, this is a very simple statement or a rule जो मैंने अभी लिखा है, but it helps me to give me the basic idea about the graph, how to graph the inverse of a function. इनवर्स ऑफ अ फंक्शन बेसिकली, अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ ये है, तो इसका अगर मुझे इनवर्स सोचना है तो आपको एक लाइन सोचनी है, वो है y इक्वल टू एक्स। और इमेजिन करो कि यहां पर मैंने मिरर प्लेस कर दिया और लुक एट द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ग्राफ, तो इसका ग्राफ का रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा दिखाई देगा, दैट विल बी द
inverse of this function. So inverse का ग्राफ वगैरह that is not in our syllabus, और reduced syllabus में inverse निकालना किसी भी function का, that is again not a part of our curriculum for this session only. But I will be giving you one basic idea, because अगर हमने 1 onto और bijective proof कर दिया, it will take hardly 10 seconds to write down the inverse of a function. So that is actually very simple. So I will be definitely talking about that as well. Check out this question. अब हम थोड़े definition, concepts, formula हो चुके हैं. So let's begin with two questions if possible. First of the question is here. Prove that the function f from R to R yes ठीक है केशव, fx is equal to 2x कह रहे हैं, it is 1 1 and on 2. अब देखिए 1 1 and on 2 आपको कह ही दिया है, तो मेरे को अब जस्टिफाई करना है कि फॉर 1 1 कैसे स्टार्ट करेंगे, बहुत ध्यान से देखना. लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, और ये वाला R ये है विच इज माई डोमेन. नेक्स्ट लेट f of x1 is f of x2. आप x, y भी ले सकते हैं, जैसे मैंने पिछले इमेजेस में डेफिनेशन में दिखाया था, बट आई यूजुअली प्रेफर f of x1 इक्वल टू f of x2 टाइप, क्योंकि मार्किंग स्कीम में हमेशा ये दिया जा रहा है. इससे क्या हो गया, f of x1 का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन थी, x की जगह x1 कर दो, 2x1 हो गया. एंड व्हाट इज f of x2, 2x2. Obviously 2 से 2 cancel and I am only getting x1 equal to x2. This imply f is 1 1. यही तो कहा था कि अगर f of x1 equal to f of x2 आपने assume करा है, let करा है, और अगर उससे सिंपल कंक्लूजन आ जाए कि x1 is x2, इवन x1 अगर दो वैल्यूज ले लेता या प्लस माइनस में आ जाता, तब भी ये 1 1 नहीं होता. फॉर onto, that's the formal way. Let y is equal to fx. पहला स्टेप y मान लिया, fx कितना था 2x, और दिस इंप्लाई x कितना आ गया y/2. व्हाट डज दैट मीन, अगर आप लॉजिकली इस चीज को सोचें, आपके पास अगर ये फंक्शन में यहां x है, यहां पर y है, राइट? तो व्हाट डज दैट मीन, मैं थोड़ा डायग्राम ना बिगर साइज में सर्कल बना के दिखाता हूं, एरो डायग्राम के. से दिस, और यहां सारे y हैं, पर याद रखिए मेरा ये डिफाइन करा गया था R to R, तो 1 2 3 सिर्फ ये नहीं होंगे, रियल है, 1/2 भी होगा, -3 भी होगा, 0.7 समथिंग लाइक दिस, ऑल रियल वैल्यूज, -1.8, 3/2 एंड ऑल रियल वैल्यूज आर देयर. तो आपको ये सोचना है कि अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स आपका फंक्शन था, मींस इसके सारे एलिमेंट किस फॉर्म में होने चाहिए, 2x के. तो अगर मैंने किसी भी एलिमेंट को पिक करा, मान लो ये 2x को 3 कहा, तो क्या ये डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है? आप चेक कर सकते हैं, 3/2 होगा हमारी डोमेन में. आपने इस एलिमेंट को पिक कर लिया मान लो, या रैंडम मैंने कहा कि कोई भी मैंने सोचा था,
और अब आप सोचो इससे x कितना आएगा, 0 माइनस और 0.9, विच इज अगेन इन माई डोमेन। सो एक लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कोई भी एलिमेंट पिक करिए यहां से, और अगर आप उसका हाफ कर देंगे तो दैट विल डेफिनेटली बी अगेन अ रियल नंबर दैट विल लाइज इन माई डोमेन। तो मैंने क्या नोट करा, थस ये स्टेटमेंट मैंने कहा है जो आपको याद भी करनी है, क्योंकि आप इस तरह से इन्फाइनाइटली मैनी एग्जांपल देकर जस्टिफाई थोड़ी करेंगे, ये तो अपने समझने के लिए है पेपर में। थस फॉर ईच y बिलोंग्स टू कोडोमेन, हमने क्या नोटिस करा, देयर एग्जिस्ट सम x which belongs to domain such that fx is equal to y, that is range is equal to कोडोमेन, और इसका मतलब f is onto। इन अ बिगनिंग डेफिनेटली ये थोड़ा सा टिपिकल लगने वाला है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, यू नीड अ लॉट ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नंबर्स, जो हम क्लास 6 7 से या उससे पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ रियल है तो 9 से पढ़ रहे हैं, तो अगर रियल नंबर्स का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आप इसको इजीली समझ पाएंगे बाय लुकिंग एट द एरो डायग्राम। सो सिंस इट इज 1 1 एंड ऑन टू, ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट साथ ही साथ being both it is the bijective function, hence invertible as well. And lastly, for your homework, only one question. अब आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर फ्रॉम एफ कहा गया है आर टू आर, शो इट इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब अगर ये 1 1 नहीं है या अगर ये ऑन टू नहीं है तो you may give the general proof if possible, or otherwise think of providing some counter example. I will be talking about in detail in our next class what is the meaning by providing the counter example, but still आपको एक hint दे दिया है, you may provide the counter example to justify that this is neither 1 1 nor onto. बिफोर आई एंड दी क्लास एक सिंपल क्वेश्चन माइंड में आया है, एफ एक्स फंक्शन होता है और एफ विच इज फंक्शन, हम रिलेशन फंक्शन सब पढ़ी थी है? तो एफ एक्स इज अ फंक्शन और एफ इज अ फंक्शन, एनीवन? एफ। ओके, ठीक है। जय आदित्य, आपने बताया ना ये? आई डिडंट नोटिस हु गेव द आंसर। सर मी। ओके, चलिए ठीक है। तो वन थिंग शुड बी क्लियर, f is a function, not the fx। fx क्या होता है? अगर चलो f फंक्शन है तो fx क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x। एक पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू की बात करी गई है, वो fx होता है। Anyway, this is a conceptual thing, no one is going to ask in the examination, but one should be clear with this idea. So with this, I end the class. In case any doubt, you can still ask or you can leave the meeting. And everyone leave the meeting. Goshul.